So I was just thinking about this song that we were singing, that our life, 4 दिन की जिंदगी, our life is only 4 days, and of that, 2 days belong have only strength. Remaining the other time, the 50% of our time is spent in weakness. और मैं इस गीत के बारे में सोच रहा था जो कहता है 4 दिन की जिंदगी है, जिसमें से 2 दिन जो है हम बलवंत रूप से काटते हैं और 2 दिन जो होते हैं हम बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं. So that is why Moses was the man of God, the prophet of God, said in Psalm 90, teach us, O Lord, to number all our days on earth. और इसलिए मूसा जो है वो वचन संहिता 90 में बताते हैं कि हमें अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने दिन गिनने के लिए समझ दीजिए. It is important number because every day we must take it as a gift from God and must live for the Lord. और हमें दिन अपने गिनने के लिए समझ चाहिए, क्योंकि हर एक दिन हमें परमेश्वर के लिए जीना है. ये परमेश्वर की तरफ से तोहफा है. With all the pleasures God gives us and all the sorrows also which come. और बहुत सारी खुशियां आएगी परमेश्वर की ओर से और बहुत सारे दुख भी आएंगे. This is the part and parcel of a Christian life till the very last day of his life. और ये एक मसीह जीवन का हिस्सा है हमारे जीवन की आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक. So, and one day we'll all have to face death. और हम सबको एक दिन मृत्यु का सामना करना है. Or Jesus may come soon. और यीशु मसीह या फिर यीशु मसीह जल्दी वापस आने वाले हैं. But we must be ready every day. और पर हमें हर एक दिन तैयार रहना है. Whether there are good times or there are bad times. अच्छे दिन भी आएंगे और बुरे दिन भी. We must be in fellowship with the Lord and be ready to meet the Lord. हमें परमेश्वर के साथ संगति रखनी है हर दिन और परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार होना है. We must not be foolish thinking that we will now die and we will take a long time to die. हमें मूर्ख नहीं बनना है कि हम पता नहीं कब मरेंगे, हमारे पास तो बहुत समय है, अभी तो हम जिएंगे. Today I sent a small video of the recording of one sister who died in Bangalore. और आज मैंने एक वीडियो भेजा है ग्रुप पर, जो एक बहन है जो बेंगलोर में रहती है, उसकी मृत्यु हो चुकी है. Her name was Lata and she was 30 years old. उसका नाम लता है और वो 30 साल की है. And she was married for about 4 or 5 years. और उसका विवाह हुआ था और विवाह हुए को सिर्फ 5 या 6 वर्ष हुए थे. I knew her family very well. I knew her since she was a small girl. और मैं उनके परिवार को बहुत अच्छे से जानता हूँ. मैं जब से जानता हूँ जब वो बहुत छोटी सी थी. She was a very nice girl and she committed her life to the Lord and she was a very humble attitude. और बहुत ही अच्छी लड़की थी. अपने परमेश्वर को उसने अपना जीवन दिया था और बहुत ही नम्र दीन थी. And she was very friendly and caring towards all the people around her. और बहुत ही ज्यादा अच्छे से रहती थी. वो अच्छे व्यवहार करती थी और सबसे अच्छे से बातचीत रखती थी. Her father also was a very godly man and he also has come to Bombay for sharing the word of God with us. और जो उनके पिता हैं वो बहुत ही ज्यादा परमेश्वर को मानने वाले, और वो मुंबई भी आए थे परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए. He died last year in the month of September at the age of 70 years. और पिछले ही वर्ष उनका देहांत हो गया था. पिछले ही वर्ष 78 की उम्र में. 70 साल की उम्र में. So, and he too also had gone through a lot of sickness in his own life. और उन्होंने भी बहुत सारी बीमारियों का सामना किया उनके जीवन में. And this girl also, Lata, she had got cancer of the pancreas and she suffered a lot of pain and discomfort for the last 2 years. और ये जो बहन है लता, उनको भी कैंसर हो गया था और उनको बहुत दर्द होता था और बहुत सारा तकलीफ होती थी उसके कारण. But even up to the last day of her life, she was so caring and she always asking, not complaining about herself, always asking the welfare of other people rather than her problems. She would hardly tell about her problems to others. और आखिरी दिन तक भी वो शिकायत नहीं करती थी, दूसरों के साथ नम्र दीन थी और दूसरों के बारे में सोचती थी.
And she was so thankful and she was ready to meet the Lord. और वो बहुत धन्यवादी थी और परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार थी. So that is why the Lord is main purpose in our life is to make us ready to meet him. और परमेश्वर का जो उद्देश्य है सबसे महत्वपूर्ण वो ये है कि हमें तैयार करें उससे मिलने के लिए. Many times we cannot understand God's ways of dealing with us. और कई बार हम समझ नहीं पाते हैं हमारे जीवन की बातों को, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन से बात कर रहा है. God sends many adversities in our life, difficulties in our life, so that we may draw closer to him. और परमेश्वर बहुत सारी मुसीबतों को हमारे जीवन में डालते हैं ताकि हम उसकी तरफ खींचे चले जाएं. And the more humble we become and the more lowly we become, God is very close to us. अभी तो कहा हम ना जानिए हम ना जानिए पक्का. There is some disturbance of the बहुत ज्यादा नम्र हमें बनाने के लिए और परमेश्वर के पास बार बार हम आए, इसके लिए परमेश्वर मुसीबतों को हमें देते हैं जीवन में. So that is the only method God can bring about, so that we may draw closer to him, and for all eternity we will really get the best spiritual life. और यही एक तरीका है जिससे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं ताकि हमारा जीवन बहुत ही अच्छा उत्तम एक आत्मिक जीवन हो. We want very small difficulties and small problems. God knows what is best for us. हमारे पास बहुत ही छोटी छोटी मुसीबतें हैं, परमेश्वर को पता है क्या हमारे लिए उचित है. So the Lord wants us to grow spiritually. और परमेश्वर यीशु मसीह हमसे ये चाहते हैं कि हम आत्मिक रूप से बढ़ते जाएं. We have a lot of earthly desires, but the Lord wants us to have spiritual desires and set our interests on things above. हमें संसार का लोभ होता है, संसार में रहते हैं तो इच्छाएं होती है, पर परमेश्वर बोलते हैं कि हमें सिर्फ स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना है. In Colossians chapter 3, कुलुसियों के 3 अध्याय में verse 2, दूसरा वचन, set your mind on things above and not on the things that are on earth, because verse 3, you have died and your life is hidden with Christ in God. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ. तीसरा वचन, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है. So when we go through troubles and trials in our life, we must ask God, Lord, what are you teaching me? What do you want me to do? और जब भी हम मुसीबतों से और बहुत ज्यादा तकलीफों से गुजर के जाएं तो परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर आप क्या सिखाना चाह रहे हैं इन सब बातों से मुझे. And our thoughts should be on things above. और हमारी जो सोच है वो स्वर्गीय वस्तु पर रहनी चाहिए. And what are the things above in heaven? और क्या है स्वर्गीय वस्तु? What are the things that are valuable in heaven? क्या है मूल्यवान जो चीजें हैं वो जो स्वर्ग में है? We have often repeated it is those who have love, joy, peace, and abundance of it. They are the most valuable people in heaven. और जिसके पास शांति, आनंद और प्रेम है वही ज्यादा मूल्यवान है स्वर्ग में. So we must try to accumulate all this more and more in our life while we live in this earth. और जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमें ये जो 3 बातें जो परमेश्वर की ओर से है इनको बढ़ाते जाना है अपने जीवन में. People in this world are only interested in earthly things, that is to have a lot of money and to a lot of pleasure and enjoyment. इस संसार के जो लोग हैं जो इस संसार के ही पीछे भागते हैं, बहुत सारा पैसों का प्रेम है और बहुत सारी लुभावनी चीजें संसार की. And when as believers we live in this world, we also are tempted to run after all these things. और हम विश्वासी होने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हम इन चीजों के पीछे से संसारिक है उसके पीछे भागते हैं. And most believers are also running after all these earthly things. और बहुत सारे विश्वासी लोग भी ऐसा ही भाग रहे हैं. And but the Lord gives us trials and problems in our life so that our lives will be focused on what God's will is rather than what is doing our own will. और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में दुख तकलीफों को डालते हैं ताकि हम अपनी इच्छाओं को नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छाओं को महत्व दें. All of God's children who have lived faithfully went through lots of troubles and problems in their own life. हम में से जितने लोग परमेश्वर के लिए ईमानदारी से अपना जीवन बीता रहे हैं उनको बहुत सारी तकलीफों से गुजर के जाना ही होगा. Only the compromising Christians
didn't go through trials and problems. और सिर्फ समझौता करने वाले विश्वासी ही जो हैं वो इन सब मुसीबतों को झेलेंगे नहीं, वो पीछे हट जाएंगे. But the Lord wants us to endure to the end in every day of our life. पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम आखिरी सांस तक हम विश्वासी रहें, हियाव ना छोड़ें. So that the presence of God can be with us and we can be close to the Lord for all eternity, for millions of years, the crores of years. और इसलिए परमेश्वर जो है हमारे साथ है और उसका जो साथ है हमारे साथ युगानुयुग रहता है. And the Lord wants the best for each one of us. और हम में से हर एक के लिए परमेश्वर के पास एक उत्तम बातें हैं, उत्तम योजना है. Like in the world, they say when you go for an exam, all the best. और यदि आप कभी एग्जाम देने जाते हैं तो आपको ऑल द बेस्ट करके बोला जाता है. When you go for a job, they say all the best. When you do well and earn a good promotion and make a lot of money. और जब आप नौकरी के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए, तब आपको बोला जाता है सब अच्छा हो तुम्हारे साथ, ऑल द बेस्ट, ताकि तुम्हें अच्छा नौकरी मिले. Yes, God also desires all the best for us in this earth. और हाँ, परमेश्वर भी हमारे लिए यही चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो हमारे संसार, हम जब संसार में रहते हैं हमारे लिए. The most important thing that God desires is that our spiritual life should grow rather than our earthly life. पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी संसारिक जीवन से बेहतर हमारा आत्मिक जीवन हो. Jesus said, what does it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या लाभ होगा यदि तुम सारे जगत को प्राप्त करो पर अपने प्राण की हानि उठाओ. That means you get everything in this world. You get all the big houses, you get a lot of comfort, pleasure, and you have a lot of money and a lot of fame. But then there is no peace and joy and love in your heart. हाँ, परमेश्वर बता रहे हैं कि क्या मतलब होगा अगर तुम्हें अच्छा पैसा मिल जाए, खाना मिल जाए, घर मिल जाए, सारी सुख सुविधाएं मिल जाए संसार की, पर तुम्हारे जीवन में शांति, आनंद और प्रेम ना हो. Everybody has to die, and you also die. The rich man has to die, and the poor man also has to go and die. हमें और आपको सबको मरना है. एक गरीब इंसान भी मरेगा और एक अमीर व्यक्ति भी मरेगा. But people who are wise will fear God and will turn away from evil, and God will fill them with the Holy Spirit. पर जो व्यक्ति समझदार है वो अपनी बुराइयों से हटेगा और परमेश्वर उसको अपनी पवित्र आत्मा से भरेंगे. And they will get the nature of Jesus Christ. और उनको परमेश्वर का स्वभाव मिलेगा. So when all these trials come, we must say, Lord, I want your nature. I want to be like you. I want to be humble and lowly at heart. और इसी सब मुसीबतों में हमें परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर हमें आपके समान होने के लिए बनाइए, परमेश्वर हमें दीन और नम्र बनाइए. 2 Corinthians chapter 4 verse 7. दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 7वां वचन. The Apostle Paul is saying that we have this treasure in earthen vessels, that the surpassing greatness of the power may be of God and not of ourselves. और प्रेरित पौलुस कहते हैं, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे. When we come to the Lord, God gives us a treasure which is the life of Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें खजाना मिलता है जो पवित्र आत्मा की ओर से परमेश्वर का स्वभाव है. So then this, by the power of the Holy Spirit, we get love, joy and peace. और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में प्रेम, आनंद और शांति होती है. We can overcome anxiety, anger, love of money and so many other bad habits. और हम जय पाते हैं बहुत सारे गुस्से से, चिंताएं से, बुरी आदतों से. This is only by the power of God, the grace of God, the grace given by the Holy Spirit. और ये सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के अनुग्रह से जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलता है. And as we live this life on this earth, this power will increase more and more. We get more of power, more of peace and more of joy. और जैसे जैसे संसार में हम जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ, आनंद और शांति हमारे जीवन में बढ़ती जाना चाहिए. But how does this increase? Says verse 8 and 9, we are afflicted in every way, but not crushed, perplexed but not despairing, persecuted but not forsaken, struck down but not destroyed. और ये कैसे मिलता है वो 8वां 9वां वचन हमें बताता है. हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते,
गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। Yes, all sorts of problems come across our life. Maybe sickness, maybe financial problems, maybe people harassing us. और बहुत सारी मुसीबतें होती हैं हमारे जीवन में, या हमें लोग सताते हैं, बहुत सारी बीमारियां या तो आ घेर लेती है, बहुत सारे संकट होते हैं। We don't know the future, what happens, there are troubles. But God said that He's going to be with us, and we are trusting His promises. और हमें नहीं पता कि आगे हमारे साथ भविष्य में क्या होने वाला है, और परमेश्वर बोलते हैं कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ब्रदर यू आर म्यूट। Can you hear me? Nobody can destroy our spiritual life. कोई भी हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट नहीं कर सकता। In Romans chapter 8 says, who can separate us from the love of Christ? और रोमियो का 8वां अध्याय हमें वचन है, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। No difficulty, no human being, no calamity, nothing can separate us from the love of Christ. कोई भी व्यक्ति हमें नहीं कर सकता, कोई भी निराशा, कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सके। So even though our outward man is perishing, our inner man is being renewed day by day. और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे जो अंदरूनी जीवन है वो अच्छा होता जाना चाहिए दिन पर दिन। Verse 10 says, always carrying out in the body the dying of Jesus, that the life of Jesus may also be manifested in our body. वचन 10, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। That means always the same attitude that Jesus had, Lord, my kingdom is not of this world. My life is not for the world, my life is only to please God and to do His will. इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर का स्वभाव हर एक दिन अपने विचारों में रखना है कि ये संसार हमारे लिए नहीं है। जैसे परमेश्वर कहते थे कि मैं इस संसार का नहीं हूँ और इस संसार के पीछे नहीं भागना है। There are very few people walking on this narrow way. और बहुत ही कम लोग हैं जो सकरे मार्ग से होकर जा रहे हैं। Because they want to follow Jesus, the whole world will be against us. क्योंकि जब वो परमेश्वर के पीछा करने चाहेंगे तो सारे संसार जो है उनके विरोध में हो जाएगा। Your relatives will be against, your friends will be against, and many believers also will be against you. आपके रिश्तेदार विरोध में आ जाएंगे, आपके दोस्त, और यहाँ तक कि कुछ विश्वासी भी होंगे जो आपके विरोध में बातें करेंगे। When we tell them about the gospel and about following Jesus Christ, then they'll tell that you are becoming very narrow-minded, and this is not the way to behave. और जब हम उनको सच्चा सुसमाचार सुनाएंगे तो वो कहेंगे कि तुम्हारा दिमाग बहुत ही छोटा हो गया, ये कोई तरीका नहीं है व्यवहार करने का। One of my relatives called me Osama bin Laden. और एक मेरे जो रिश्तेदार है मुझे ओसामा बिन लादेन कहते हैं। So because they want to compromise with the world, and they call all us bad names. और वो क्योंकि वो नहीं जानते, क्योंकि वो संसार से समझौता करना चाहते हैं और इसलिए वो ऐसे नाम रख देते हैं। And they removed my name from the WhatsApp group of my family. और इस कारण उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जो परिवार का बना हुआ था उसमें से निकाल दिया। We are a very big family. My father has got so many 9 brothers and sisters and so many cousins and all. We are a very big family, and most of them are not just Christians by name. और मेरा बहुत बड़ा परिवार है क्योंकि मेरे पिताजी के 9 भाई थे, इसलिए बहुत बड़ा परिवार है। और they are just Christians by name. और वो सिर्फ एक नामधारी मसीह है। And they don't like to be hear about being born again and to be disciples of Jesus Christ. और वो इन सब सुसमाचार को सुनना नहीं चाहते कि नया जन्म और परमेश्वर का सच्चा चेला। So they don't like people who follow the Lord. और इसलिए वो नहीं पसंद करते उन लोगों को जो परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलते हैं। Verse 11 says, for we who live are constantly being delivered over to death for Jesus' sake, that the life of Jesus may be manifested in our mortal flesh. और 11 वचन कहता है, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। So all the troubles and problems that we go through in our life is the purpose is that the life of Jesus, the character of Jesus Christ and the nature of Christ may come into our lives.
जितनी भी मुसीबतें तकलीफें हमारे जीवन में आती है, उसका परिणाम बस इतना होना चाहिए कि परमेश्वर का सा स्वभाव, परमेश्वर का सा दीन और नम्र होना हमारे जीवन में आ जाए। All the bad habits in our life and all the bad character which was there before in our life, we keep on change. We get changed, and we become more humble and kind-hearted, and all our bad habits go away, and we become more and more Christ with every passing year. और सारी गंदी आदतें, बुरी सोच और जो सारा जो गलत व्यवहार हम करते थे, वो हमारे बदल कर हमें दीन और नम्र बनना है और परमेश्वर का सा स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए। When we look back into our lives, we can say, "Thank you, Lord, for changing us, changing me so much." और जब हम पीछे मुड़कर देखें हमारे जीवन में, तो हम कहें, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मुझे बहुत सारा बदल दिया। When I look at my life, I thank God that God has done such a work in my own life. और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्या ही अद्भुत काम परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है। But like many teachers tell their students, how they do, they say he could have done better. और जैसे हर एक जो शिक्षक होता है, और वो अपने विद्यार्थी को ऐसा कहता है कि हाँ, तुम और बेहतर कर सकते हैं। Yes, I could have definitely done better. और हाँ, मैं और बेहतर कर सकता हूँ। Yes, because of that, because many times we are very slow in obeying God and we have so much of unbelief, then God cannot work in our life. कई बार बहुत धीमे हो जाते हैं हम विश्वास में, कई बार अविश्वास आ जाता है, इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाते। But we are faithful to God. God will do a wonderful work in our life if we are quickly obey all that the Lord tells us and be humble in heart. और यदि हम दीन और नम्र होंगे, तो परमेश्वर कई सारे कार्यों को हमारे जीवन में करेंगे। We may all want to live a very long life in this world, live up to 80 or 90 years old. और हम में से हर एक जन ये चाहते हैं कि हमें बहुत बड़ा जीवन मिले इस पृथ्वी पर, 80-90 साल का कम से कम। There are some believers who live up to 90, some believers who live only 30 and 35 years old. कुछ जो विश्वासी है वो 90 साल तक जी जाते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो 30 या 35 वर्ष में उनकी मृत्यु हो जाती है। But the main purpose is that we become close to God and we become humble in heart. पर इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हमें परमेश्वर के करीब आना है, परमेश्वर के स्वभाव का सा होना है। And get rid of all our selfishness and earthly mindedness. सारा जो हमें स्वार्थीपन है, सारा जो हमारा दिमाग जो चलता है इस संसार की चीजों के लिए, वो सब हटा दीजिए। This can happen in a few years' time also. और ये थोड़े से समय में भी हो सकता है। We see the example of Stephen. हम स्टीफन का एक उदाहरण लेंगे। In the Bible, he was a young man who loved the Lord and did such a good work for the Lord. और वो एक जवान पुरुष था और परमेश्वर के लिए उसने बहुत ही अच्छे कार्य को किया था। He must have died when he was around 30 years old. They killed him by throwing stones on him. और उनकी मृत्यु हो गई जब वो 30 वर्ष के थे, उनके ऊपर पथराव किया गया था। And as he was being killed and he was dying, he saw Jesus standing in heaven, and he was standing in heaven waiting to receive him. और जब वो आखिरी सांस ले रहे थे, जब पथराव हो रहा था, तब उन्होंने परमेश्वर को देखा ऊपर खड़े हुए, और उनका इंतजार कर रहे थे परमेश्वर आने के लिए। He shouted, "See, I can see Jesus standing on the right hand of God, waiting to welcome me." और वहां पर वो बोल रहे थे कि देखो, मैं परमेश्वर को देख पा रहा हूँ, वो दाहिनी ओर खड़े हैं, मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। Whenever Jesus is normally sitting down at the right hand of God the Father. और हमेशा ऐसा हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के दाहिने हाथ पर यीशु मसीह विराजमान है, बैठा है। बैठे हैं। But now Jesus stood up. पर अब परमेश्वर खड़े हो गए हैं। Whenever a player makes a good score in cricket and they get out, then everybody stands up and give him a standing ovation. They clap their hand, everybody is standing. और जब क्रिकेट के मैदान में कोई अच्छा शॉट अगर मारता है, तो सब लोग उसको उठकर तालियां बजाते हैं उसके लिए। So God also stands up and appreciates us when he is pleased with us, when we obey him. और परमेश्वर भी हमारे लिए खड़े होते हैं जब हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं, और परमेश्वर हमारी बड़ाई करते हैं तब। When we humble ourselves, Jesus is very happy because he also humbled himself.
जब हम अपने आप को नम्र करते हैं तो परमेश्वर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने आप को नम्र किया था. He never lived a selfish life, and we also, if we don't live a selfish life, God will be very happy with us. परमेश्वर ने कभी स्वार्थी जीवन नहीं जिया, और यदि वो हम ये देखते हैं कि हम स्वार्थी जीवन नहीं जीते तो वो बहुत खुश होते हैं. So in all our trials and problems in life, we see our own selfishness and pride. और हमारी मुसीबतों में, तकलीफों में हम देख पाएंगे कि कैसे कितने स्वार्थी हैं और कितने घमंडी हो गए हम. So when we see that, we must confess it to God. Say, Lord, I'm selfish. Please forgive me. Fill me with your Holy Spirit, that I may become like you and be humble in heart and be unselfish. और जब हम देखते हैं कि हम बहुत घमंडी हैं, स्वार्थी हैं, तो हमें परमेश्वर के पास जाकर ये मान लेना है कि हम हैं, और परमेश्वर से बदलाव के लिए प्रार्थना करनी है. And we must confess with our mouth that God will definitely do this work and change us. और हमें अपने मुंह से अंगीकार करना है और कहना है, परमेश्वर आप निश्चित रूप से मुझे बदलेंगे. Because we receive the grace of God only by faith. और हम विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के अनुग्रह को पा सकते हैं. This is said in verse 13, but we have the same spirit of faith according to what is written. I believed, therefore I spoke. We also believe, therefore also we speak. 13 वचन में, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, तो हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं. This phrase, I believe, therefore I spoke, is written in Psalm 116 verse 10. और ये जो सो मैं विश्वास करते हैं इसलिए वो बोलते हैं, ये जो वचन है वो भजन संहिता में लिखा हुआ है 116 में. 116 verse 10. 116 वचन 10. So the Apostle Paul is saying, we also believe, therefore also we speak. और इसलिए यहाँ पर वचन कहता है कि हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं. Yes, we also believe that God can free us from anger. Therefore, we'll confess to everybody, to God. Yes, Lord, you're able to free me from anger. You're able to be free from anxiety, free from all lust and all love of money. और इसलिए यहाँ पर वचन जो कह रहा है, हम भी विश्वास करते हैं, ताकि हम विश्वास करने के द्वारा हम प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक चिंता से, पैसों के लोभ से, हर एक सांसारिक बातों से, और जो गंदी बातें हमारे अंदर बुराइयां हैं उनसे हमें छुड़ाइए. So we have to open our mouth and speak and confess before God and before everybody else. और इसलिए हमारे मुंह को खोलना है, अंगीकार करना है सबके सामने, ताकि परमेश्वर हमें बदले. We sing the praises of God. God can do this work and He can change my life. परमेश्वर की स्तुति करनी है, प्रार्थना करनी है, और परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेंगे. And that's the spirit of faith that each one of us should have. और ये जो विश्वास का आत्मा है, हम में से हर एक के जीवन में होना ही चाहिए. Say, yes, Lord, you can be free from fear. और हाँ, हमें कहना है कि परमेश्वर आपने मुझे हर एक डर से छुड़ाया है. Of anxiety and tension. हाँ परमेश्वर, आपने मुझे हर एक चिंता से और हर एक मुश्किल से दूर किया है. You can free me from all dirty thoughts. हर एक गंदे विचारों से आप मुझे मुक्त कर सकते हैं. Yes, because you love me and you call me to be like you. क्योंकि परमेश्वर आप मुझसे प्रेम करते हैं और आपने मुझे अपने समान होने के लिए बुलाया है. That is why this spirit of faith should always be in each one of our hearts. और इसलिए विश्वास का जो आत्मा है हम में से हर एक के हृदय में होना ही चाहिए. The Apostle Paul confessed it. प्रेरित पौलुस ने इसका अंगीकार किया. He said, I should not be filled with jealousy and pride and anxiety. Yes, God has called me to change me. और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं घमंड से और बुराइयों से नहीं भरा हुआ हूँ. परमेश्वर ने मुझे बदला है, परमेश्वर ने मुझे बदलने के लिए बुलाया है. And that's why the Apostle Paul spoke. और इसलिए प्रेरित पौलुस बोलते हैं. Yes, we must not speak, oh, I'm very weak, nothing is happening, I'm always calling you to sin, I'm very weak and I've got bad habits. Say, no, God is called, I'm very weak and bad, but God is a living Savior who can save me. हमें ये नहीं कहना है कि हम तो बहुत कमजोर हैं, क्या करें, हम पाप में पड़ जाते हैं,
हम बहुत कमजोर हो गए हैं। परमेश्वर ने हमें से हर एक को बदलने के लिए बुलाया है, हमें परमेश्वर बदल सकते हैं। Many people confess that, oh, I've got a very bad habit of eating and be very lazy. God says, yes, God has called me to be very active and to stop eating my bad eating habits. और कई लोग होते हैं कि खाने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, वो बहुत ज्यादा खाते हैं, और परमेश्वर ने हमें बुलाया है डिसिप्लिन में रहने के लिए, और ताकि हम बदलें। हम भले ही बहुत सारा खाते हो या कुछ भी हो, पर परमेश्वर से मांग सकते हैं कि हम डिसिप्लिन में रहें। He says, what to do, brother? I got very much angry and I can't help it, but I'm very weak, just like every other believers are weak. और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं हाँ भाई मैं क्या करूं, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, जैसे कि अन्य विश्वासी भी होते हैं कभी कभी। The very few believers who will say, yes, God can change my life completely. और कुछ ही विश्वासी ऐसे होते हैं जो कहते हैं हाँ परमेश्वर मुझे पूर्ण रीति से बदल सकते हैं। Joshua and Caleb said, yes, with God's help we can overcome every sin. और यहोशू और कालेब ने कहा था कि हाँ परमेश्वर के अनुग्रह से हम हर एक पाप पर जय पा सकते हैं। And because of that, they went to the promised land and God blessed them. और इसीलिए वो वाचा के देश में पहुंचे थे, और उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया था। So if you and I also, in all our difficulties and problems, yes, God loves you very much. He will give me victory over every sin and give me peace and joy abundantly. और हर एक मुसीबत में हमें भी कहना है कि हाँ परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, और हम में से हर एक जन को हर एक पाप में से निकालेंगे, हमें बहुतायत का एक अनंत जीवन देंगे। So we'll stop praying and start praising God. और इसलिए हमें सॉरी ब्रदर, We will stop praying, asking God, but praising God. हमें परमेश्वर से मांगना कम और परमेश्वर की स्तुति करना ज्यादा करनी चाहिए। We are in each one of our lives. In my life, then we will see the victory very fast. और परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में काम कर सकते हैं, फिर हम परमेश्वर में एक जयवंत जीवन को देखेंगे। And all the glory will go to God. और सारी महिमा परमेश्वर को मिलेगी। We can say, yes, Lord, by your grace, I never tell lies. और हम कहेंगे हाँ परमेश्वर आपके अनुग्रह से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। God has done this work in my life. और परमेश्वर जो है मेरे जीवन में हर एक बदलाव ला सकते हैं। लाया है, परमेश्वर ने मेरा चमत्कार किया है। So that is what ये so हमको भी ऐसा ये confession of our hope, that is confession is known as what do we say in Hindi? अंगीकार। अंगीकार जी। यस, हमको हमेशा अंगीकार करना चाहिए, परमेश्वर मेरा जीवन में जरूर काम कर रहा है, और मेरा जीवन में प्रभु हमको हर पाप से हमको विजय देंगे। तो जरूर ये जरूर होगा हमारा जीवन में, हमारा घर में भी। यस, आई कैन बी अ गुड हस्बैंड, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, मैं एक अच्छा हस्बैंड बन सकता हूँ प्रभु जी, हालेलुया। मैं तो प्रेम से बर्ताव कर सकते हैं, लोगों के ऊपर दया कर सकता है, पवित्र आत्मा की दया, क्योंकि पवित्र आत्मा बहुत ही बलवंत है। प्रभु हमको ये सब ताकत देंगे, हमारा जीवन पूरा चेंज करेंगे। And this is the wonderful work God does in our life, and we become spiritually rich and very close to God. ऐसे हम परमेश्वर के पास आएंगे, हम परमेश्वर का संगति में चलेंगे, जैसे स्टीफन ने चला था। ये छोटी सी जीवन ने प्रभु उनका जीवन में काम किया था। सो हमको प्रभु कई लोगों को भी बता सकते हैं कि कई लोग, अपोस्टल पॉल, जॉन ने 90 साल जिया था, 90 साल के ऊपर। लेकिन अपोस्टल जेम्स कितना साल, 30 साल से कम उसका सर काट दिया था। सो प्रभु की इच्छा है कि हम प्रभु की संगति में रहे, प्रभु का काम जो हमको दिया है वो काम निभाए। Let us do the work of God and live in fellowship, praising the Lord, worshiping the Lord every day. संगति में रहना सबसे अच्छा है। अगर प्रभु आज आएंगे, आज हम मर जाएंगे, प्रभु को मिलना है। सिर्फ हमारा जीवन में पाप नहीं होना चाहिए।
आज अब परमेश्वर का नया जीवन जन्म मिला है, आज पश्चाताप किया, आज अब अगर मर जाएंगे तो हम सीधा प्रभु के चरणों में जाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन बिल्कुल पवित्र होता है प्रभु के ब्लड से। सो एवरी डे वी हैव टू कन्फेस आवर सिंस, हमारा पाप को हमको कबूल करना है और प्रभु का धन्यवाद लेके, प्रभु विश्वास करके हमको आगे बढ़ना है। प्रभु की महिमा हो। लेट अस वर्शिप एंड प्रेज द लॉर्ड। एंड और कोई शेयर कर देंगे? ब्रदर रत्नस्वामी कैन शेयर लिटिल बिट, उसके बाद एक दो ब्रदर्स कैन आल्सो शेयर प्रभु की महिमा के लिए। I thank God for today's encouraging words. मैं परमेश्वर के प्रोत्साहित वचन के लिए धन्यवाद। Yes. Yeah. Go ahead. We heard that we have to set our minds on the things above, not on the things of the earth. और हमने ये सुना कि हमारा जो मन है वो स्वर्गीय वस्तु पर होना चाहिए, पृथ्वी पर की नहीं। So we have so many, God allows so many difficulties and troubles in our life. और परमेश्वर अनुमति देते हैं ताकि हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें और तकलीफें आए। Please read Sister James 1 verse 1 to 4. याकूब पहला अध्याय 1 से 4 वचन तक। परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह का दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तीतर बीतर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। Yeah. So here James is writing, second, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. और यहाँ पर दूसरे वचन में याकूब कहते हैं कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, count it joy. और इसे अपने आनंद की बात समझो। Yes. So my dear brothers and sisters, when God allows some trials or our faith to be tested, we have to be thankful to Him and only wait on Him and trust in Him. जब परमेश्वर कुछ तकलीफों को भेजे हमारे विश्वास को परखने के लिए, तो हमें आनंद पूर्वक रहना है और परमेश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास करना है। Verse 12 also, sister, same chapter, verse 12. 12 वचन, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। We have to endure temptation and difficulties. हमें हर एक परेशानियों से और हर एक प्रलोभन से बाहर निकलना है। When our faith is tested, our patience will increase. जब भी हमारा विश्वास परखा जाता है तो हमारा विश्वास बढ़ता भी है। Then God will make us complete. फिर परमेश्वर जो है हमें संपूर्ण बनाते हैं। So when my request is, when difficulties come, you don't murmur, thank God. और मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी तकलीफें आए तो कुड़कुड़ाए नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करें। We have to pray, give me strength, Lord, to endure this situation. हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर इस परिस्थिति में से मुझे बाहर निकालने के लिए मुझे सामर्थ दीजिए। Then God will show His ways. फिर परमेश्वर जो है अपना मार्ग आपको दिखाएंगे। Isaiah 40:31 में, those who wait upon the Lord will renew their strength. और यशाया 41 वचन में लिखा है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो एक नया बल प्राप्त करते जाते हैं। So He will give strength if we wait for Him. Amen. जब आप उस पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको अपने नए बल से भरेगा। आमीन। आमीन। और कोई ब्रदर्स है? 2-3 brothers or sisters can share. Hello, praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. अभी प्रभु का वचन सुना है। अभी जब ब्रदर ने बोला है ये है ना, विश्वास हो भाई नहीं, उसके लिए ब्रदर ने बोला है। तो विश्वास नारा का ये मरण है, ये प्रभु के लिए अच्छा है। जब दावीद उनके बेटे के लिए वो दुखी था, इसलिए वो बहुत दुखी था। फिर उन लोगों को बोल रहे हैं कि अभी दावीद क्या करता है क्या मालूम नहीं। फिर भी वो बेटा गुजर गया बोल रहे, तो वो उठकर नहाने लगा और बोला है, और क्या बोला कि मैं उस पर जाएगा। ये उस विश्वास है। हम भी ऐसा है, लेकिन एक वचन है, उपदेशक में एक वचन है, उपदेशक में उपदेशक 12वां अध्याय और 7 वचन। मग धूळ पूर्वीसारखी भूमी आणि ज्या देवाने जीव आत्मा दिला त्याच्याकडे तो परत जाईल। हे वचन क्या बोल रहा है? मग धूळ पूर्वीसारखी भूमी पुन्हा मिळेल। हम विश्वास नहीं रहे हैं, हम फिर से भूमि पे गुजर जाएगा, लेकिन जिस प्रभु ने हमारा आत्मा दिया है उसके पास हमारा आत्मा जाएगा। ये सच्चा वचन है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन प्रभु का आत्मा हमारे आत्मे से बोल रहा है। फिर एक वचन है स्तोत्र संहिता, स्तोत्र संहिता वचन है 20वां अध्याय है और 7 वचन। कोणी आकाशातून आपल्या 20 वचन, कोणी रथावर आणि कोणी घोड्यावर भरोसा ठेवतात, परंतु आम्ही यहोवा आमचा देव याच्या नावाविषयी बोलू। आज एक दिन है, ये सब लोग किस घोड़े पर किस रथ पर भरोसा रखता है। हम हमारे जीवन प्रभु पर विश्वास रहने वाले हम विश्वास है, इसलिए हमको कभी डरना नहीं। हम प्रभु की स्तुति करना और प्रभु के आदर महिमा करना, इसलिए आमीन आमीन। और किसी को कुछ शेयर करना है? मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और आपसे कुछ एक वचन से बांटना चाहती हूँ। मैं अभी क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो मेरे पास काफी समय होता है कि मैं परमेश्वर के लिए समय और दे सकूं। तो इसलिए अभी कुछ ऐसी शॉर्ट मूवीज होती है जिसको मैं देखती हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर विजन वीडियो करके रहता है, पर मैं वहां से बहुत ज्यादा प्रोत्साहित होती हूँ, क्योंकि ऐसे कुछ भाई बहन है हमारे, जैसे शैमुअल मोरस है, एमी करमाइकल और बहुत सारे लोग हैं। जैसे आज भी मैं देख रही थी रिचर्ड बुमरान, मतलब इन्होंने परमेश्वर के लिए कितनी मतलब कितना ज्यादा परमेश्वर ने इनको, इनके जीवन में भी दुख तकलीफें आई हैं, पर ये अंत तक इन्होंने धीरज धरा है। ये देख रही थी और एक वचन भी मैं पढ़ रही थी आज, दूसरा कुरिन्थियों 4:17 और 18, क्योंकि हमारा पल भर का सा हल्का सा क्लेश, यहाँ पर लिखा हल्का सा, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई थोड़े ही दिन की है,
परंतु अनदेखी सदा बनी रहती है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन से बहुत प्रोत्साहन मिला, और इसको जब हम लिविंग बाइबल में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा क्लियर ऐसा लिखा हुआ है कि अगर जो मुसीबतें हम लोग झेल रहे हैं वो अभी जो दिखाई दे रही है वो लंबे समय तक नहीं चलने वाली है, पर इसका जो परिणाम है वो परमेश्वर की महिमा होगा। क्योंकि अगर हम हल्का सा अभी दुख झेल लेंगे, जैसे ब्रदर जैक भी उस दिन बता रहे थे कि आपको अभी 1 सेकंड के लिए अमीर होना है या अनंत जीवन के लिए आपको जीना है जो करोड़ों वर्षों का है, अनगिनत, वो बता रहे थे। तो हमें 1 सेकंड के लिए जीवन नहीं जीना है, वो हमारा हल्का सा ही दुख है अभी का जो जीवन है। और जो हमारे भाई बहनों ने पिछले जो 300 साल पुराने या ऐसे कुछ भाई बहन है हमारे, उन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ सहा है। उनमें से अभी 1% भी हम नहीं झेल रहे हैं परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने हमें हमारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा कभी भी, और परमेश्वर हमें सहायता भी करेंगे यदि हम हैं भी सही कुछ तकलीफों में तो। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो अभी दिखाई दे रही है तकलीफें हमारे आसपास, ये सब हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं। इसको लिविंग बाइबल में आप एक बार जरूर पढ़िएगा। और मैं जैसे अभी ब्रदर बता रहे थे, हमें संसार की वस्तुओं को नहीं देखना, हमें पृथ्वी पर की चीजों पर मन लगाना है। हमें संसार में सारी चीजें अच्छी लगती है क्योंकि बहुत लुभावनी चीजें हैं, यहाँ पे पैसा है, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, ये वो बहुत सारी बातें हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, और हमें सब अच्छा लगता है। हम परमेश्वर से ऐसा भी बोल देते हैं काश प्रभु मेरे पास भी हो। पर मैं हमेशा इस वचन से बहुत प्रोत्साहित होती हूँ। मैं एक बार एक वचन पहला कुरिन्थियों 6:12 में है, ये सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है पर सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु मैं किसी के अधीन नहीं होंगी। हमें सब वस्तुएं उचित लगती है पर सब वस्तुएं मेरे लाभ की नहीं है। हमें किसी के भी अधीन नहीं होना है, हमें सिर्फ परमेश्वर के अधीन रहना है। वो जो हमें देंगे वो हमें लेना है, वो जो हमें नहीं देंगे उसको परमेश्वर की इच्छा समझ के हमें छोड़ना है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद मुझे प्रोत्साहित करने के लिए, और मैंने आपको परमेश्वर प्रोत्साहित किया, मैं उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आमीन 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 हालेलुया। तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रभु का जीवन में हम भी एक दौड़ में हम लोग, लेट अस आल्सो बी फेथफुल एवरी डे। एक दिन का दौड़ है, हम एक दिन, आज का दिन तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरे, मैं पाप नहीं करना, मुझे विजय दे दीजिए, मैं ट्राई करूंगा माय लेवल बेस्ट। प्रभु आपका धन्यवाद करके, आपका पीछा करके, मैं सांसारिक चीज के ऊपर मुझे नजर नहीं रखना है। प्रभु आपका इच्छा मेरा जीवन में पूरे, आप मेरा जीवन में कुछ भी करो, मैं आई एम सरेंडर टू यू, दैट आपका इच्छा पूरा हो जाए हमारे जीवन में। ऐसे प्रार्थना करेंगे जरूर प्रभु हमारा जीवन में जरूर चमत्कार करेंगे और हमारा जीवन में भरपूरी से आनंद और प्रेम और शांति लेके आएंगे। सो प्रभु का महिमा हो। तो हम प्रभु से हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और हमारा फैमिलीज और चर्च के लिए भी धन्यवाद करके, धन्यवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रभु का ताकत से ही हम सब कर सकते हैं। धन्यवाद के साथ करेंगे, हालेलुया। प्रभु ये मेरा जीवन में जरूर हो सकता है, और हर अविश्वास को हमको छोड़ना चाहिए और प्रभु के ऊपर विश्वास करना चाहिए। प्रभु के ऊपर भरोसा रखेंगे, हम आगे चलेंगे। तो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, धन्यवाद हो। एक दूसरे से भी प्रार्थना में रखें